So welcome all of you in my channel Harshaj Gupta, and right now I have just done my kind of internship project. It was like to edit a video which was being made by Notebook LLM. It was kind of an informative video about how the AI works. So my job was to remove all the initial watermarks of the Notebook LLM and replace it with our company's Prabni AI's label. And it was not as easy because it is my first time that I was kind of editing a video. We can change photos like very easily, just covering the things and then putting whatever we want to just over it. But in this case, it was like we have to use some kind of software. In my case, I use there is a software named 123 app, which I used to kind of remove the label, the initial levels, and then I put using the same software the new levels. Initially, kind of I have not used such softwares, so it was kind of a tough thing. But yeah, I got to learn. I got to learn this thing because it's gonna use in my upcoming videos also. Till now, I was doing only simple editing. So, as I told that I was using just a VN editor, which is kind of a very simple editor, and that I particularly use in my YouTube videos. Because kind of it's a tough thing to kind of shoot all the video in college along with the studies and even in the first semester. And I also told that our test is under process, so it's a tough thing to first shoot it then edit it. So for that purpose I use simple editors like VN editor, but the project included things which was not able to be done by VN, because I use a kind of VN editor in my phone, not on the laptop. My laptop is not that much capable to edit a kind of full length video, even a simple video, but my laptop has some kind of heating issue. So what I can do with that? But in my project I have to use the laptop, and it was kind of a problem. I'm as I said that I'm learning editing, so it is like I'm giving many tries. I till now I have tried more than 10 attempts to change to remove the logos, to add new logos. I went across many softwares, many websites to do that, and finally it worked. But yeah, it is not the final solution. There are other tools for that purpose, but they are kind of paid tools. For example, even in Photoshop, there are tools like watermark remover, but yeah, they are paid, and we have to find some kind of way to do it in a more efficient way. So I was going through the channel and I saw few videos, but not like kind of just from the above, but I analyzed the whole 5-minute video and every second of it, and I was able to find many errors. That was kind of a human error, because as I told that the software we are using are not paid, and we have to do all the things in that. So human errors are kind of a common thing in that. But now it's my job to try to kind of even remove those errors which are happening. Let me give a example. So it is one of the video of the channel Prabni AI, the official channel of the AI based company Prabni AI. And right now I am working on its videos. So yes, there are many errors in the videos, but it's our job to find all those errors and find the most efficient way how to deal with them, because kind of using paid software is not the solution of everything. There are many other ways that we can use it, and I think that I'll be able to fix this problem, but it is kind of take a bit of time and experience. So today we have a good news. It is the very first time कि हमारे यहाँ मेस में पहली बारी वेज के लिए कुछ स्पेशल डिश बनने वाली है, काइंड ऑफ स्नैक्स में। क्या बनने वाला भाई? कोई स्पेशल डिश नहीं है, मतलब चाय के अलावा आज ब्रेड पकौड़ा देगा, बस यही खास बात। अब तो कुछ नहीं दिया यार, ब्रेड पकौड़ा भी दे दे, बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो हमेशा टोस्ट ये बिस्किट वगैरह देता है अभी गिन के। हाँ आज ही दे रहा है। अच्छा ये कॉस्ट इसका कुछ नहीं है ना? आई मेस में कॉस्ट तो देगा, आई मीन अलग से। हेलो अगेन। और अभी बज रहे हैं रात के 9, और मुझे टास्क दिया गया था इंटर्नशिप में कि 9 बजे से पहले मुझे 5 वीडियोस एडिट करनी है।
और ऐसा ही टोल्ड इन द लास्ट क्लिप कि वीडियोस में ज़्यादा कुछ एडिट करने को नहीं है, बस टाइम को अच्छे से देखते हुए एक एक मिली सेकेंड का हिसाब रखते हुए उस वीडियो में मुझे उसमें जितने भी पहले से लोग हैं उनको चेंज करना है और अपनी कंपनी का लोगो वहाँ ऐड करना है, क्योंकि दीज आर AI जनरेटेड वीडियोस। तो यहाँ पे जो AI की यूज़ की गई है उसका लोगो वहाँ पहले से होता है, तो मुझे वो करना था। और ये काम वैसे तो दिखने में आसानी होता है, लेकिन जिसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि जो वाटर मार्क जो होता है उसको हटाना हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता है, तो पहले मुझे वो सॉफ्टवेयर ढूंढना था और मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर ढूंढे हैं, डाउनलोड भी किए हैं, लेकिन उसमें से यूज़ कुछ खास नहीं है। फिर मुझे ऑनलाइन ही जाके करना पड़ा। मुझे एक मिल गई अच्छी वाली सॉफ्टवेयर, तो मैंने वहाँ से कर ली। लेकिन उसके बाद भी इशू ये होता है कि जब ये काम हम लोग करते हैं तो हम लोग इसमें एक एक सेकेंड का, मिली सेकेंड का भी रखना पड़ता है कि हम लोग कभी ऐसा ना हो कि लोगो अपना पहले दिख रहा है, फिर 1 मिली सेकेंड के लिए भी सामने वाला ये कंपनी के लोगो हट के किसी और कोई और लोगो आ जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, प्रिसाइज मैनर में करना पड़ता है इसको। और इसके अलावा ऐसा ही टोल्ड कि मुझे 5 वीडियो करनी थी और मैं 3 ही अब तक कर पाया हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो लैपटॉप ये है ना, ये काइंड ऑफ मेरे काम में हमेशा बाधा डालने के लिए रेडी रहता है। आई एम सेकेंड यूज़र। ये मेरे भैया की लैपटॉप थी और अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ पूरी तरीके से फूक चुकी है। और ये मेरे काम में, मैं किसी काम करने बैठता हूँ मुश्किल से 1 घंटे भी होते हैं मुझे कुछ भी करने टाइम, वीडियो बना रहा हूँ, PPT बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, 1 घंटे होते से लैपटॉप की बड़ी गंदी वाली हीटिंग होती है और फिर मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे ऑफ़ करना ही पड़ता है। और इसमें मैं कुछ अभी फ़िलहाल कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही है, तो मुझे ऐसा एज पर ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन अभी प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, टास्क ज़्यादा दिए जाएंगे, इंटर्नशिप से भी टास्क आएगी, और मैं खुद भी यहाँ कॉलेज में अपने सीनियर्स के साथ काम करता हूँ कई बार ही, तो भी मुझे छोटे मोटे टास्क दे दिया करते हैं, तो उनका भी मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना अब लैपटॉप थोड़ा मैनेज करने में इशू होती है, लेकिन ठीक है, अभी ज़्यादा काम हेक्टिक नहीं है। लेकिन मैं जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं अपना लैपटॉप थोड़ा सा काइंड ऑफ अपग्रेड कर लूँ इससे। सो अभी मैं अपने रूम में बैठा था आकाश के साथ, और तभी उसने कहा कि उससे कुछ क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके, तो देखते हैं उसे क्वेश्चन क्या है, उसके सॉल्यूशंस मुझे आइडिया है कि नहीं, और मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। आकाश अपना क्वेश्चन पूछेगा। पूछ आकाश। भाई कॉलेज स्टार्ट हुए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन एकेडमिक्स का बोझ दबा रहा है। लैब का फाइल, और मतलब लैब का फाइल तो भी चलो छापना है उसमें, लेकिन क्लास में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई वो बर्डन जैसा लग रहा है। तो हम जानना ही चाहते हैं कि तुमको भाई हम बस मैथ्स पढ़ते हुए देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट तुम नहीं पढ़ रहे हो, बस काम कर रहे हो अपना इंटर्नशिप वाला सब, कैसे कर रहे हो भाई, तो बताओ भाई। सो इसने जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा माई ओन एक्सपीरियंस जो कि अब तक केवल 3 हफ्तों का ही है, उसमें मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि अपने यहाँ क्या है ना कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो यहाँ हम लोग को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपना अटेंडेंस को कम करके मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस हम लोग को करना ही पड़ेगा 75% मोर देन। तो अगर क्लास जाना ही है तो सबसे बेटर रास्ता ये है कि क्लास में आप ट्राई करो कि थोड़ा फोकस बना के रखो, क्योंकि कई बार होते हैं ना कि समझ में चीज़ें नहीं आती हैं और उस टाइम आपका फोकस चला जाता है। तो आप ट्राई करो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, तो बस आप थोड़ा सा फोकस बना के रखो उस 1-2 घंटे में, कि जितना भी हो समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत ही है, लेकिन एटलीस्ट जितना भी आना हो वो समझ में आ जाए। कुछ में भी नहीं भी आएगा, और ऐसा होता भी है। मुझे खुद स्टार्टिंग में मैथ्स क्लास में कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे टाइम लगा समझने में, मैंने खुद से भी थोड़ा पढ़ा, लेकिन आ गई। और कुछ तो ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, आकाश ने मेरे को बताया कि भाई तू केवल मैथ्स पढ़ रहा है, तो मैं बता दूँ मैथ्स में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ मैथ्स। इसके अलावा मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे केमिस्ट्री में मैंने अब तक यहाँ रूम पे आके ज़रा सा भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। क्लास में भी मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी सी इशू होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं रहा है, मैं केमिस्ट्री में काइंड ऑफ वीक हूँ। और इसके अलावा फिजिक्स जो हमारे यहाँ एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो मुझे क्लास में समझ में आ जाती है। हमारे फैकल्टी अच्छे हैं, वो काइंड ऑफ एक्सप्लेन करते हैं, मुझे समझ में आ जाती है। बस मुझे याद थोड़ा बहुत नहीं रहता, क्योंकि ऐसा सेट कि मैंने रूम पे आके सिर्फ मैथ्स पढ़ता, तो मुझे याद नहीं रहता है फिजिक्स में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ, मुझे क्लास में सब समझ में आ जाता है, जब से पूछते तो मैं उस टाइम पे जवाब अच्छे से दे देता हूँ। और आप बात है टेस्ट का, तो मंडे को हमारे एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्ट तो है ही, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि वही हर कॉलेज बॉय की तरह 1 रात तो पहले तो मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं 2 रात पहले से तैयारी शुरू कर दूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। मुझे बस इतना है कि मुझे रिवाइज करके चीज़ों को मेमोरी में अपनी थोड़ी डालनी है, ताकि मैं टेस्ट के दौरान ब्लैंक आउट ना कर जाऊँ।
और बाकी सब तो मैनेज हो ही जाएगा, कॉलेज है, काइंड ऑफ चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हम लोग पढ़ने नहीं सीखने के लिए आए हैं, पढ़ाई तो हो ही जाएगी।